बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इलाका करेरी से ताल्लुक रखने वाला ANP का रहनुमा अरबाब नज़ीर अहमद खान का कहना है कि मैं 2008 और 2013 में अवामी नेशनल पार्टी के टिकट पर लड़ चुका हूं और अभी भी मैं अवामी नेशनल पार्टी के साथ हूं और मैंने अपने इलाके के बहुत खिदमत की है। इससे पहले भी साबिका वज़ीर आला हैदर हुती ने मुझे 5 करोड़ रुपए का फंड दिया था। इस फंड के जरिए मैंने अपने इलाके के बहुत तरक्याती काम किए हैं और अभी मौजूदा हुकूमत से तोक़ा रखते हैं कि इस इलाके में जितने मसाइल हैं इस पर तवज्जो देंगे। आगे मज़ीद जानते हैं और न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। अवामी नेशनल बाई बर्थ दा वगना के प्लाट पे निकमानी मुंगा द बादशाह खान पाटे के रावनी मुंगा बादशाह खान के रुखारी और इंशाल्लाह यू बिया बन जिसे जिस तरह तसो मदद वो कि तसो गोरे मौजूद सब ध्यान तसो गोरे पहाड़ से कि मसाइल सेवा पर दे इलाके की मसाइल से कम दर सेवा زمونږ دا د وزو علاقه ده اخوانه د دې د اوبو پاشه سیستم نه دی شوی. زه یو ځل ما ته حیدر خان یو 5 کروڑ روپے 2008 نه بعد 10 دغه ټیم کې راکړې وې. ما په کار شروع کړو په 10 کې سیلابونه راغلل نو کار نه شو. اوس پورې ما کزونګ نه رم دې دوی غړې دې دا څنګه چې کوم دا سو کلی دي دا ټول د اوبو پاشه نظام خراب کم ټیم فصلونو سره وو ضرورت دي هغه ټیم کې سین نو بل راځي یو دغه پیپل پارټي نه یا پی کې نو شو دا ځل بیا کمپیو لاړو بیان تا جبیت لا اوس هم یې منه په هر طریقه چې منتخب شي هغه تاسو پته کنه او ټول دغه ته پته چې ډیر وټونه هغه شي یې پاتې شو او چې لږه هغه شي هغه وته نو یو خدای چې جمهوریت څنګه ملک دی خو دغه کې هغه رنګ جمهوریت نه کیږي داسې یو طاقت راشي چې هغه شکست ورده دغه ورکی ګټه ورکی او هغه یې نه جوړ شي. باغی ته موږ دا وایو چې د علاقې کوم مسایل خدي زمیندار سړی دی نور عالم خان په کارداري چې د علاقې لپاره چې کوم ردی مسایل دي لارې دي او افاشي ده نکاسي ده د ځمکو سیندونو کې دا ټکرې چوي چې دې له زیات توجه ورکړي. اور دا اوس په دې ځای باندې تاسو وګورئ په خیبر په کومه باندې پیټي حکومت دی که څنګه چې امین ګنډا پوسه بدري اعلی دی هغه لپاره څه میسج دی؟ بس هم خدا ویو چې امین ګنډاپور مبارک شي. خبره دارا چې هغه له پکارداري چې سنټر نه وفاقي حکومت نه خپل صوبې حقوق والی د کربي دې ریالټي را نور زموږ کوم مسایل د صوبې او بعض اوقات داسې موشي د پنجاب د زموږ په کم ټیم کې چې وړه ګرانېږي پنجاب نه پابندي وکړي چې دا ټول مسایل وفاق سره دی ښه طریقو سره آسان طریقو سره یې دغه کړي حلګي کې او د صوبې لپاره ښه کارکردګي وکړي نو خلک هم دې بیا خوښوي. پارټي د پښتنو پارټي ده او که مونږ فرض مال الیکشن بیلو خو نظریه نه بیلو مونږ مخکې نظریه زړه هغې ولاړ یو او د دې پښتنو د ښېګړې لپاره هلې ځلې کوو. اوس هم لګیا دی زموږ ایمل خان د جمعې پروګرام راتلونکي سبا نه بل ورځ په پونیر کې به یو جلسه کوي هغه هم د دې باره کې کوي او اسټیبلیشمنټ هغه یو پیغام ورکوي چې یاره تاسو خپل بارکونو ته لاړ شئ او د جمهوریت کې د حکومتونو عمل دخل مه ساتئ. نو چې فیر الیکشن کېږي فیر نمایندګان به راځي او هغوی به د بل د طرفې او د کار لپاره کېږي چې کوم په پیسو راشي نو خو تاسو ته پته ده چې بیا خپل کاته پوره کوي هله به چاله څه کار وکړي. نو زموږ انشاءالله موږ پښتنو دا پارټي ده د پښتون قوم دپاره به د خیرې هلې ځلې زموږ پارټۍ مشران کوي او یې ته موږ قرض لرو چې په شان ودرېږي او څومره کېدي چې آینده الیکشن کې چې د خلکو نه که خیر نمایندګي غواړي چې صوبې له
څنګه چې 2008 کې حیدر خان خدمات کړي چې اب کارونه کړو. علاقہ شکرپورہ سے تعلق رکھنے والا وی سی چیئرمین فضاد خان کا کہنا ہے کہ میں پہلے سے پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہا ہوں اور میں نے اپنے علاقے کا بہت خدمت کیے ہیں. یہاں پر بہت ترقیاتی کام پی ٹی آئی کی پارٹی کی نسبت سے میں نے کیے ہیں اور ابھی بھی میں پی ٹی آئی پارٹی کے ساتھ ہوں اور اب یہ خیبر پختونخوا پر پی ٹی آئی کا حکومت ہے اور انشاءاللہ اس علاقے میں جتنے مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے مثبت قدم اٹھائیں گے. آگے مزید جانتے ہیں آن نیوز کے بیورو چیف ثاقب خان کی اس رپورٹ میں. زمانم فضاد خان دی زه د دې ویلیج کونسل شکرپورہ کم چې د یونین کونسل ناکای او د تحصیل شالم حصہ ده د دې چیرمن یم. د دې نه مخکې الحمدلله زه د دې کلي چیرمن هم دا په دوباره باندې اما هم په ما اعتماد وکړو او دا خدمت موقع راکا. زما تعلق چې دا د پاکستان تحریک انصاف سره دی او الحمدلله موږ د دې د تحریک انصاف د پلیټ فارم نه چې د خپل سیاسي هلې ځلې کوو او دا علاقه چې زموږ کومه ده د پیښور سره خوا کې نږدې ده او چونکې د پیښور کې چې کوم سهولیات دي یا د هسپتالونو یا د روډونو یا د ګیسونو نو بدقسمتۍ سره د هغې ثمرات دې علاقې ته هغه امره نه دي رارسېدلي چې څومره رسېدل پکار دي. حالانکه دا دومره فاصله کې نه دی پروت زمونږ د علاقه 12 کیلومتره 12 کیلومتره که تاسو غټو ښارونو ته وګورئ مطلب دی لاور ته وګورئ کراچۍ ته وګورئ نو هغه چې دی 12 کیلومتره د هغه ښار حصه ګڼلی شي. نو تاسو مطلب دی چې دې نه دا تاثر اخیستی شي چې دا علاقه پکار ده چې د پیښور د ښار کم سهولیاتو چې هغه هم دې ته ورکړی شوي او دا علاقه مخکې تللی وه او دې کې چې دا سهولیات موجود نو دا د پیښور د آبادۍ زیاتر بوج به دې علاقې برداشت کړی و. د دې وجې نه چې دا علاقه کې هغه سهولیات نشته نو چې کم بوج دی هغه په پیښور ښار باندې زیات دی د آبادۍ. حالانکه پکار ده چې هغه سهولیات دلته ورکړی شي نو دا ټول آبادي به دې طرف کوشش وکړي را شفت به شي د پیښور د ښار چې کم مین ګنجان آبادي ده هغه ختمه شي. د تحریک انصاف حکومت چې دی په دې صوبه کې راغو نو دا الحمدلله یو مکمل حکومت راغو چې په هغې کې د هیڅ چا مطلب دی د حصهدارۍ ضرورت زموږ د حکومت ته نشته. د دې نه مخکې دوه ټینې چې کوم زموږ د تحریک انصاف په دې صوبه باندې حکومت کړی دی خو چونکې زموږ صوبه مالي طور باندې یو کمزوري صوبه ده او د مرکز نه د امداد یا د فند په تمه یار وخت نو چونکې مرکز نه دوی سره امداد وشي یا دوی ته فنډینګ ریلیز وشي نو دلته کې داسې منیجمنټ موجود دی او زموږ اوس موجوده وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب تاسو ته پته ده څه تعارف محتاج نه دی الحمدلله ډېر یو وخت یو سړی دی بل خپلې قربانۍ دي د پارټۍ دپاره مطلب د تکالیف جیلونه ستاسو د وړاندې دي دا څه پټې خبرې نه دي نو هغه یو داسې سړی دی چې زما دا امید دی 100% که هغې ته د مرکز نه فنډونه جاري شي نو هغه انشاءالله هغه به دې صوبې ته ډیلیور کوي او دا صوبه چې دا به په مخکې ځي انشاءالله. باقي د پارټۍ خبرې دي نو الحمدلله مونږ مخکې هم د پارټۍ سره ولاړو بغیر لالچه اوس هم ولاړ یو هغه سلسله جاري ده او سیاست یو داسې شی دی چې په دې کې هر قسم حالات راځي په سیاسي ورکر باندې سخت هم راځي نرم هم راځي نو د سیاسي ورکر په کار ده چې دا کردار نه وي چې په نرمه کې خپلې پارټۍ سره ولاړي او په سخته کې هغه پارټي پرېږدي یا داسې رای فرار اختیار کړي. انشاءالله چې مونږ مخکې هم دې پارټۍ سره مخلص وو ورسره منډه والې اوس هم ولاړي او بیا به هم ولاړي وي. دا کومه حصه کې چې مونږ ناست یو کوم علاقه ده زمونږ دا یو زرعي علاقه ده د دلته زیات تر چې کوم دارومدار دی هغه د معیشت په زراعت دی او بدقسمتۍ نه زمونږ چې کوم زمیندار وروڼه دي هغې ته د حکومت د طرفه هېڅ توجه نشته. په دې وجه باندې مخکې به د یو زمیندار چې لګیا و په ټوک کې هغه سره به 2-3 مزدوران هم کار کولو د هغه کار به هم روان و 2-3 کسو به ورسره نور هم روان و. اوس د هغه زمیندار په خپله ځي پیښور کې ځان له د دیاړی په تلاش کې وي نو چې کوم هغه سره ارد گرد ماحول یا د هغه بچي یا معاشي طور باندې کمزورې شو. بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس تھل یونیورسٹی بکر میں آمد. انہوں نے مختلف امور کا تفصیلی جائزہ لیا اور یونیورسٹی میں نئے بنائے گئے دفاتر کا افتتاح کیا. بعد ازاں وائس چانسلر تھل یونیورسٹی بکر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منعقدہ انٹرپرینورشپ گالا کا باقاعدہ افتتاح کیا. اس موقع پر ڈاکٹر شاہد کلیم خان رجسٹرار تھل یونیورسٹی بکر، رحیم احمد خالد ٹریزرر تھل یونیورسٹی بکر، ڈاکٹر محمد کبیر کنٹرول امتحانات، دیگر اسٹاف ممبرز اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی. گالا میں مختلف اشیاء کے اسٹالز لگائے گئے تھے جس سے حاضرین بہت لطف اندوز ہوئے.
खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। डिप्टी कमिश्नर धर्मून भवानी की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के सिलसिले में एक इजलास जिला के 1,58,675 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदम मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर धर्मून भवानी ने DC कॉम्प्लेक्स के कमेटी हॉल में इंसदाद पोलियो मुहिम के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि 29 अप्रैल से 5 मई 2024 तक जारी इंसदाद पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर इकदाम लिए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि मौसम गर्मा में आने वाले इस मुहिम में पोलियो वर्कर्स को ठंडा पानी और मशरूबात जैसी सहूलियात से आरास्ता करने के साथ भरपूर ताउन भी किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुहिम में तमाम स्टेक होल्डर्स, समाजी तंजीमों और दीगर मुतल्लिका कारकुनों से भी मदद ली जाएगी ताकि मुहिम के 100% नताइज हासिल किए जा सके। इस मौके पर इंसदाद पोलियो मुहिम के फोकल पर्सन डॉक्टर मुसव्वर अलमानी ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 29 अप्रैल से शुरू होने वाले इस मुहिम के दौरान जिला में 1,58,675 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। खबर शामिल करते आरावाला से चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला में मरूफ पहलवान फकीर मोहम्मद गुजर मरहूम के 7वीं बरसी के मौका पर बड़े कबड्डी क्लबों का टाकरा। फतेह टीम को ट्रॉफी और कैश प्राइज से नवाजा गया। आरावाला नवाही गांव 82 में मरूफ पहलवान चौधरी फकीर मोहम्मद गुजर मरहूम के 7वीं बरसी के मौका पर पाकिस्तान के 2 बड़े कबड्डी क्लबों के दरमियान बहुत बड़ा टाकरा हुआ, जिसमें इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्ला राजपूत, नफीस गुजर, उबैदुल्ला राजपूत, वकास बट, शौकत सिपावाला, नफीस गुजर, कलीमुल्ला जट और बिलाल कमांडो एहसान वट्टू जैसे नामवर खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करते हुए शायकीन से खूबदाद नकद कैश इनामात वसूल किए। ये मैच पाकिस्तान के 2 बड़े क्लबों यारन मुल्क कबड्डी क्लब और SKS क्लब के दरमियान खेला गया। 1 पॉइंट की बढ़तरी से SKS कबड्डी क्लब ने यह मैच अपने नाम किया। मैच के मेहमान खुसूसी साबिक सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब डॉक्टर फरक जावेद से SKS कबड्डी क्लब के कोच चौधरी साजिद गुजर ने विनर ट्रॉफी और नकदी इनाम वसूल किया। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन 24 अप्रैल 2024 ज़िले आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरावाला की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क ने जिले बहबूद फंड बोर्ड के तहत पंजाब हुकूमत के 257 हाजिर सर्विस रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले सरकारी मुलाजमीन और इनके अहले खाना की माली इमदाद के लिए 1,08,60,000 रुपए तकसीम करने की मंजूरी दी। इस हवाले से एक इजलास DC ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में कुल 270 केसेस पेश किए गए, जिनमें से 257 केसेस की मंजूरी दी गई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क ने जिले हुकूमत के कुल 257 मुलाजमीन को मुख्तलिफ मुद्दात, जिनमें शादी ग्रांट, कफन दफन और स्कॉलरशिप के केसेस की मंजूरी दी, जिनकी कुल मालियत 1,08,60,000 रुपए है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन हुकूमत का कीमती असासा है और इनके अहले अयाल की बर वक्त इमदाद एक फर्ज है जिसकी अदायगी फौरी होनी चाहिए। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद में जिले सदर किसान बोर्ड नजर मोहम्मद चीमा की क़यादत में किसानों का AC ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। किसानों की महंगी बिजली, महंगी खाद नामंजूर के नारे। एहतजाज करते किसानों का कहना था कि हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों के बायस किसानों का मौशी कत्ल हो रहा है। किसान खुशहाल होगा तो ही पाकिस्तान खुशहाल होगा। ब्लैक कीमतों पर खाद खरीदने वाले किसान अब कम कीमत पर गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हुकूमत इस नाइंसाफी को खत्म करके किसानों को इनका हक दे। हुकूमत अपने वादों के मुताबिक काश्तकारों से गंदम खरीदे। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि किसानों को गंदम फरोख्त करने के लिए बारदाना फौरी जारी किया जाए और गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाई जाए और काश्तकारों को सस्ती खाद और बीज फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। अदालत ने मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान को मारने वाले थाना सदर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस ने ईद से एक रोज कबल फर्स्ट ईयर के तालिबे इल्म को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। नौजवान को फायरिंग करके मौत के घाट उतारने की वीडियो भी मीडिया ने हासिल कर ली थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार 3 नौजवान को जमीन पर गिराकर फायरिंग कर रहे हैं। वुरसान की जानिब से DPO ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज भी किया गया मगर सुनवाई ना हुई। पुलिस मुकाबले में जांबा के नौजवान वकार खरल की वालदा ने अदालत में पुलिस एहलकारों के खिलाफ पिटीशन दायर की थी, जिस पर अदालत ने दोनों फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। जांबाग नौजवान की वालदा ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने बेदर्दी से मेरे नौजवान बेटे को कत्ल किया। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में एक खातून समेत 5 मंशियात फरोश मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 165 लीटर कच्ची शराब और 2030 अदद मोसर सेहत मेन पुड़ियां बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज टंडो मोहम्मद खान SSP सैयद इमदाद अली शाह के अहकामात पर पुलिस को जाए पेशा अफराद, मंशियात फरोशों और रूपोश इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना सिटी SHO थाना सब इंस्पेक्टर ने अपने स्टाफ के हमरा मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 मंशियात फरोश मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से 20 लीटर कच्ची शराब, ठरू और 2030 अदद मेन पुड़ियां बरामद करके मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। थाना B सेक्शन SHO थाना B सेक्शन सब इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर ने अपने स्टाफ के हमरा अपने थाने के हदूद में कच्ची शराब की भट्टी पे छापा मार कार्रवाई करते हुए एक कच्ची शराब भट्टी मालकन औरत मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया। खानका डोगरा में छोटी सी गफलत ने खातून की जान ले ली। हादसा मोटरसाइकिल के चेन में चादर आने से हुआ। रेस्क्यू 1122 ने लाश लाहिकीन के हवाले कर दी। खानका डोगरा में चादर चक के रिहायशी मियां बीवी मोटरसाइकिल पर सवार होकर खानका डोगरा की तरफ आ रहे थे कि मांगट गांव के करीब खातून शाजिया बीबी की चादर मोटरसाइकिल की चेन में आ गई, जिसकी वजह से खातून शाजिया बीबी सड़क पर गिर गई। सर पर चोट आने से खातून मौके पर गिरते ही जाँ भाग हो गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर खातून की लाश लाहिकीन के हवाले कर दी है। हादसे की इतला पर घर में सफ़े मातम बिछ गया। खबर शामिल करते हैं काले की मंडी से। महकमा फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। गैर मेयारी और एक्सपायरी मशरूबात और पापड़ सलांटी बरामद करके तलब कर दी और दुकानदार को भारी जुर्माना किया गया। काले की मंडी मेन बाजार में वाक़िया ब्रार जनरल स्टोर पर महकमा फूड अथॉरिटी ने छापा मारा और दुकान और गोदाम से मरूफ ब्रांड के गैर मेयारी एक्सपायरी बोतलें और सलांटी और पापड़ बरामद करके दुकानदार इब्रार अहमद को भारी जुर्माना आयद कर दिया। एक्सपायरी मशरूबात और पापड़ को तलब कर दिया गया। अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे नासिर के खिलाफ कार्रवाई पर अवाम ने महकमा फूड अथॉरिटी के इस इक़दाम को सराहा है। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। तालिब इल्म पर तशद्दुद करके सिंधी टोपी की बेहुरमती करने वाले प्राइमरी टीचर को बचाने के लिए बासर अफराद और कुछ उस्ताद यूनियंस भी मैदान में आ गई। तालिब इल्म की हालत में मजीद तशवीशनाक वुरसान पर दबाव भी शुरू कर दिया गया। 2 रोज कबल गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल मकली में एक टीचर मुनव्वर मसीह ने 5वीं जमात के तालिब इल्म पर फीस ना लाने पर तशद्दुद किया था। इसकी सिंधी टोपी उतार कर फेंक दी थी। तालिब इल्म माजिद जोखियों को खून की उल्टियां भी आई थी और वो बेहोश हो गया था, जिसे मकली सिविल अस्पताल में इलाज मुआवजे के बाद घर रवाना किया गया, मगर तालिब इल्म की हालत मजीद बिगड़ गई। इसे जुमेरात के रोज भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तालिब इल्म माजिद जोखियों पर तशद्दुद और सिंधी टोपी की बेहुरमती पर ठट्टा की अवाम में गम गुस्से की लहर दौड़ी हुई है, जबकि प्राइमरी टीचर मुनव्वर मसीह को बचाने के लिए कुछ साजदा यूनियन और बासर शख्सियात भी मैदान में कूद पड़े हैं। जबकि मुतासर तालिब इल्म के अहले खाना का कहना है कि हम पर दबाव डाला जा रहा है कि हमारे बच्चे से बयान वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी SSP ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्टा पुलिस का मंशात जुराइम पेशा नासिर आदि मुजरिमान गुटका मेनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एक गुटका मटीरियल सप्लायर मुलजिम गिरफ्तार। 480 किलो गुटका मटीरियल, 600 पैकेट गुटका मावा और एक ट्रैक्टर बरामद। मुकदमा दर्ज। SSP ठट्टा के अहकामात पर घारू पुलिस ने कार्रवाई करके ट्रैक्टर ट्राली में छुपाकर गुटका मटीरियल सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर एक गुटका मटीरियल सप्लायर मुलजिम अब्दुल रहमान वल्द अमीर खान पठान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को हिरासत में लेकर 480 किलो चूरा सुपारी और 600 पैकेट गुटका मावा बरामद करके मुलजिम के खिलाफ थाना साकरू पर गुटका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी में महकमा सेहत ठट्टा की ज़ेर तमाम मलेरिया के आलमी दिन के मौका पर वाक का इनेकाद। वाक की क़यादत सिविल सर्जन डॉक्टर यामीन शाह, डॉक्टर आकाश अब्बासी, डॉक्टर खालिद कुरैशी, डॉक्टर दाऊद हलायू और डॉक्टर श्याम कुमार की क़यादत में निकाली गई, जो सिविल सर्जन ऑफिस से मेन गेट तक निकाली गई। वाक के शुरका ने कहा है कि मलेरिया एक खतरनाक मगर काबिल इलाज मर्ज है जो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। इससे बचाव के लिए गली मोहल्ले में मच्छर मार दवाओं का स्प्रे करना चाहिए और सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। थाना शालीमार इन्वेस्टिगेशन विंग के ASI मलिक साबिर और अहमद रजा की बरवक्त कार्रवाई। जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए थाना शालीमार इन्वेस्टिगेशन विंग ने 2 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग के मुलजमान को मुखबर खास के इतला पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मेन बागबानपुरा बाजार नज़द शाह अब्दुल गनी रोड के करीब से असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। और शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद महकमा सेहत और जिला इंतजामिया की जानिब से मलेरिया से बचाव का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में एक आगाही वॉक की गई, जबकि डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर सरशाद की जेर सदारत मलेरिया से बचाव और डेंगू की रोकथाम के हवाले से किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात के जायजा का इजलास भी मुनक्किद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर HR एंड कोऑर्डिनेशन इशफाक रसूल, CEO हेल्थ डॉक्टर उमर शरीफ राठौर, DHO डॉक्टर फाइक अली तारड़, डिप्टी DHO डॉक्टर जहीर अहमद समेत महकमा तालीम, पॉपुलेशन वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, ज़राअत, फिशरीज, जिला कौंसल और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों की जानिब से डेंगू मच्छरों की रोकथाम के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लेते हुए तमाम अफसरान को हिदायत की कि डेंगू मच्छर और मलेरिया की रोकथाम के लिए तमाम महकमों के मुश्तरका जदोजहद जारी रखना होगी और मलेरिया से बचाव के आलमी दिन की मुनासबत से अवाम को ये आगाही देना जरूरी है कि मच्छरों से महफूज रहने के लिए हिफाजती एहतियाती इक़दाम किए जाएं। बच्चे और बड़े सुबह और शाम के औकात में खास तौर पर लंबी आस्तीनों वाले कपड़े पहने, कमरों के दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखें, मच्छर मार लोशन और स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।